Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. We have already completed the first unit of macroeconomics, that is fourth unit. And right now we are going to start unit number 5, that is consumer equilibrium and demand. This is the complete name of this unit. And this unit contains 13 marks. 13 नंबर की ये यूनिट है. टू स्पेसिफिक टॉपिक्स आर देयर, लाइक एक कंज्यूमर बिहेवियर है यहाँ पर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी जिसे बोलते हैं हम, और दूसरा डिमांड है. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. शुरू करते हैं. अभी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करते हैं. यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो ये यूनिट 2 एज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स. वैसे अगर आप बात करें ओवरऑल तो ये यूनिट 5 हो चुकी है. अभी 13 नंबर की यूनिट है. कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है इसको. और ये सारी चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं, बेसिक चीजें जो यहाँ पर आती हैं, सो दैट आई वुड बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं. काफी सारी जो डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं इकोनॉमिक्स की, उससे कुछ निकाल के डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर समझाई हैं, सो दैट यू पीपल कैन रिलेट द डेफिनेशंस फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एज वेल. सो इफ यू टॉक अबाउट कंज्यूमर, देन हु इज अ कंज्यूमर? I had given you this definition when we were doing the first chapter of statistics. So I told you that when it comes to a consumer, when it comes to the definition of consumer, a consumer is a person, an individual who is buying basically goods and services for this direct satisfaction of his or her wants. His objective is to get maximum satisfaction with limited expenditure. A consumer always tries to achieve maximum level of satisfaction with the help of available resources. That means the budget, giving the price of the goods and services in the market. तो हमेशा एक चीज मैंने आपको बताई है कि whenever we talk about consumer, we talk about maximum satisfaction. जब भी हम इसकी बात करते हैं, हम कंज्यूमर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. लिमिटेड एक्सपेंडिचर मतलब अपनी इनकम में से लिमिटेड. अब हर किसी की अपने अपने नीड होते हैं. दिस लेडी इज थिंकिंग ऑफ न्यू ड्रेस, दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, शी इज थिंकिंग ऑफ अ वर्ल्ड टूर, international tour, this person is thinking of cycle, she's thinking of vacations. So different people have different needs, and how they can get such kind of things at very affordable price by giving least amount and getting the maximum satisfaction, that's what we call consumer equilibrium. ऐसे सारी चीजों को consumer equilibrium बोला जाता है. So these are the people, those who are planning to buy these goods, so these are consumers. जो ये खरीदने वाले हैं, खरीदेंगे. After consumer, a very important thing comes, and that is what is utility. ये utility क्या होती है? ये बहुत important term है, इसको आप समझ लीजिए. What do you mean by utility? Now you people are able to watch this video with the help of YouTube, with the help of Zoom classes, with the help of some other application. Now that application is giving you utility. I am having one pen in my hand, with the help of which I'm able to write on pen tablet, and I'm able to teach you this. All these goods are giving me utility. You want to study, you want to come across the concepts, the book which you are using is giving you utility. You are thirsty, you are drinking water, water is giving you utility. Now what is this utility? So the want satisfying power of a commodity is called utility. Want satisfying power through which you satisfy your want. If I want to take class, right now the online classes are going on. If I want to take the class, I need to use my mobile. The mobile is having the power to satisfy my want. So this is the utility of mobile. Of Bluetooth earphone, I am able to speak, and freeing my hands. So that's what we call utility. A person, this is the example.
A person wants to go to Chennai. He boards a train and reaches his destination. So the train service has utility. अब ट्रेन की जो सर्विस है इसने यूटिलिटी दी है. For your kind information, utility is measured in utils. Measuring units. Unit basically. यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है. एक और एग्जांपल ले लीजिए. A person wants to save money. A bank accepts his deposits. So banking facility, banking service has utility. Banking service की utility है. बाकी मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं आपको वो भी यूटिलिटी के ही है. तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए. तो जो भी चीजें आप यूज करते हैं, आपको कपड़े पहनने हैं, कपड़े आपको यूटिलिटी दे रहे हैं, आपको खाना खाना है, भूख लग रही है, खाना खाना है, खाना आपको यूटिलिटी दे रहा है. सो एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कमोडिटी विच यू आर यूजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज गिविंग यू द यूटिलिटी. मैं मेरे घर में रह रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं और बाहर रोड पे नहीं सोना चाहता, तो द हाउस इज गिविंग मी यूटिलिटी. I have a bed in my house, so I can sleep over the bed. That is giving me the utility. So हर एक चीज की यूटिलिटी होती है यहाँ पर. जैसे कि ये एक एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं that this boy is saying that I am hungry, I want food and this apple can satisfy my want. Apple को खा लेगा. Apple has the power to satisfy a want, so Apple has utility. Apple की यूटिलिटी है. इन महाशय को धूप लग रही है, इन्होंने कैप पहन ली है, कैप पहन ली. तो ये जो कैप पहनी हुई है, it is giving him utility. He wants to move outside and he wants to save his feet. So shoes जो हैं, जो इन्होंने पहने हुए हैं, that is giving him utility. He wants to look nice. He is wearing a t-shirt and half short, you can say. That's giving him utility. तो यूटिलिटी हर एक चीज से मिलती है. कम मिले, ज्यादा मिले, कैसे भी हो सकती है, लेकिन जो भी चीज हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हर एक चीज से यूटिलिटी मिलती है. If we talk about the concepts of utility, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी, सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मींस दैट से दिस इज द क्वांटिटी, जीरो क्वांटिटी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3. इसको आप चपाती मान लीजिए, बर्गर मान लीजिए, स्लाइस ऑफ पिज्जा मान लीजिए. टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं. मैंने जीरो कंजम्पशन किया, जीरो यूनिट कंज्यूम की, मेरे को जीरो टोटल यूटिलिटी मिली. मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, मुझे 10 यूटिल्स मिले. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स. मुझे 10 यूटिल्स मिली. मेरी सेटिस्फेक्शन कुछ, मतलब आई हैव गॉट सम सेटिस्फेक्शन, आई हैव गॉट सम यूटिलिटी. कुछ सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है. एक गिलास पानी पी के, एक चपाती खा के, 1 स्लाइस ऑफ पिज्जा खा के. दूसरी जब स्लाइस खाऊंगा तो थोड़ी कम यूटिलिटी मिलेगी. 1 से 10 मिली तो दूसरे से 10 से कम मिलेगी, तो मैं 8 मान लेता हूं. तो दूसरे से 8 और मिल गई, तो 10 + 8 18. तीसरे से 6 मिली. इस तरीके से ये 24 हो जाएगा. आप कुछ और भी ले सकते हैं. यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव चीज है. मार्जिनल यूटिलिटी, अब ये मार्जिनल जो आता है, ये मार्जिनल का मतलब है, भैया एक चीज समझ लो, दिमाग में डाल लो, जब तक जिंदगी में पढ़ोगे. मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, या फिर होता है एडिशन या एडिशनल. आप एडिशन भी बोल सकते हैं, घुमा फिरा के चीज सेम ही है वो. एडिशन कह लीजिए, एडिशनल कह लीजिए. चेंज, एडिशन, एडिशनल. तो यहां पर ये आया 0. 0 - 10, जब आपने एक यूनिट कंज्यूम की, नॉट 0 - 10, 10 - 0, जब आपने एक यूनिट कंज्यूम की, 0 से फर्स्ट यूनिट पे आ गए, आपकी यूटिलिटी में चेंज आया 10. जब आप 1 से सेकंड यूनिट पे जा रहे हैं तो आपने 18 कर दिए यूटिलिटी अपनी 10 से इंक्रीज करके, तो यहाँ पर 8 का चेंज आया. फिर इसी तरीके से इन दो यूनिट्स का चेंज निकाल लीजिए. 24 - 18, दैट विल बी 6. तो यहाँ पर जो चेंज आता है एक और यूनिट कंज्यूम करने से, दैट्स व्हाट वी कॉल मार्जिनल यूटिलिटी. ये मत समझिए कि यहाँ पर ही मैंने सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. आप ये कह सकते हैं, आगे स्लाइड्स हैं, आप ये कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ MU. जैसे आप CF बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, 10th क्लास में आपने बनाया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. TU can be achieved in the same manner. This MU is just like frequency and TU is just like your cumulative frequency. So 0, let me change the
color of the marker so that you people can understand. How can I find out TU? So 0, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 6, 24. So just like making CF, you can make TU with the help of MU. Some questions can be asked in your examination that find out TU with the help of MU or MU with the help of TU, or find out both when some of the figures are missing in a table. So such kind of questions, numerical questions, can come in your examination. So you can practice them, even though we are also having some of the questions over here. We'll be talking about total utility over here. सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की. आ जाइए फिर बात कर लेते हैं टोटल यूटिलिटी की. व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? It is the sum total of utility derived by consuming all the units of a commodity. एक commodity की जितने भी units, जैसे ये जो Mr. X हैं, Mr. राम मान लीजिए, he is consuming 4 units of apple, and पहले से इनको जो utility मिली, not पहले से इनको 14 मिली यूटिलिटी, तो ये 14 लिख लीजिए. दूसरे से 10 मिली, तो 14 प्लस 10 दैट इज 24. तीसरे से 5 मिली, तो मैं 14 और 10 दोबारा तो नहीं लिखना चाहता, मैं डायरेक्टली 24 लिख लेता हूँ. 24 प्लस 5 29. ये टोटल यूटिलिटी इनकी इंक्रीज होती जा रही है. देन 30, तो 30 यूटिल्स इनके पास आ गई टोटल यूटिलिटी. ये फर्स्ट एप्पल से कितना मिला, सेकंड से कितना मिला, थर्ड से कितना मिला, फोर्थ से कितना मिला, इज एबल टू टेल यू. So the sum total of utility derived by consuming all the units of a commodity, that is what we call total utility. Total utility of nth unit, 1 2 3 4 5 जितने भी यूनिट्स का आप निकालना चाहें, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको समेशन ऑफ MU of 1 first unit, MU of second unit, MU of third unit, इस तरीके से till nth unit you can find out, or we can simply write the formula TU, total utility, sigma, which is equal to summation of MU, marginal utilities. So he's saying that I ate 4 apples, as you all are able to see, and I got 30 utils of utility. 30 utils in Mahashaya ko mil gaye. That is what we call total utility. So this is I have also found the total utility over here. So you can see that it is increasing. And I just want to tell you one more thing over here, that if you want to make the diagram of TU, it is in such a manner, all of you. Initially, up to a level, this is TU, this is x-axis, y-axis, origin. Here we'll take quantity of a commodity, and here we'll take total utility. So as you can see, when we'll increase the units of a commodity, when we'll increase the consumption, TU will keep on increasing. As you can see, on first unit, TU is 14. On second unit, it has increased by 10, that is 14 plus 10, 24. So it has increased. Then, it will reach to its maximum point, and then it starts falling. In the upcoming questions, you will come across that particular thing. कि ये क्यों फॉल होता है. इट फॉल्स एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आपको पता लगेगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ने से पहले हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ लेते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशन टू टोटल यूटिलिटी. एडिशन, चेंज, एडिशन कह लीजिए, चेंज कह लीजिए, यहाँ पर स्लैश. चेंज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. It is the change or addition to total utility. कब? When one more unit of a commodity is consumed. जब आप एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो आपकी जो यूटिलिटी में चेंज आता है, दैट्स व्हाट वी कॉल टोटल यूटिलिटी. में चेंज आता है, यूटिलिटी में जो चेंज आता है, दैट्स व्हाट वी कॉल मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड. अब यहाँ पर आप देखिए, आपने फर्स्ट ये जो कुकी डो दिया हुआ, आइसक्रीम दी हुई है, यहाँ पर आपने फर्स्ट आइसक्रीम खाई, आपका यहाँ पर 25 यूटिल्स आया. फिर आपने एक और खाई तो आपको 20 यूटिल्स मिले, उससे कम, क्योंकि आइसक्रीम को एक आपने आइसक्रीम का ये जो पैक खाया. सो योर नीड्स आर फुलफिल्ड अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, and you have got 25 utils here. So from the next unit, you are going to get lesser satisfaction, lesser utility from the first unit, and third unit से आपको उससे भी कम मिलेगा. अगर fourth unit भी आप कंज्यूम, उससे शायद आपको 5 मिले, 5 utils मिले, या जो भी इसी तरीके से. So this is what we call marginal utility. तो
यहाँ पर आप लास्ट यूनिट से आप देख सकते हैं दैट इज 10, मार्जिनल यूटिलिटी इज 10. यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ TU एज वेल, TU से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वांटिटी यहाँ दी हुई है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5. मान लीजिए इसी आइसक्रीम की ये क्वांटिटी है. TU इज गिवन टू यू. मैं इसी को फॉलो कर लेता हूँ. फर्स्ट यूनिट से 0 पे 0, फर्स्ट यूनिट से 25 यूटिल्स, दूसरे पर 20 और मिल गए 45, तीसरे से 10 और मिल गया 55, उसके बाद में 5 और मिल गया दैट इज 50, उसके बाद आपने एक और कंज्यूम किया तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ एंड देन इट बिकेम 45. तो यहां पर हम इससे MU का कैलकुलेशन करते हैं. TU इज गिवन टू अस. कितना चेंज आया? MU इज इक्वल टू डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी, या फिर आप लिख सकते हैं MU ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू TU ऑफ nth यूनिट माइनस TU of n minus 1. This is how you can write the formula of marginal utility. मैं तो कहूंगा इसको लिख लीजिए बेटा कहीं पे. फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं. आंसर विल बी द सेम विद द हेल्प ऑफ बोथ द फॉर्मूला. 0 से 25 हो गया, 25 का चेंज आया. 25 से 45 हो गया, 20 का चेंज आया. 45 से 55 हो गया, 10 का चेंज आया, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. लेकिन इसके बाद की बात कर रहे हैं. फोर्थ यूनिट भी आपने कंज्यूम करी तो आपका 5 का चेंज आया. अब आपके पेट में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती खा लिया 0 यूटिलिटी. और फिर भी अगर आपने 6th यूनिट भी खा ली, इन दैट केस यू विल गेट नेगेटिव यूटिलिटी. यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव. मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव. तो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज आप अगर बनाएंगे तो MU कुछ इस तरीके से बनेगा आपका. MU ऑफ x commodity, x axis, y axis, origin, quantity of a commodity, and MU. So MU keeps on falling because when you will consume more and more units of a commodity, the satisfaction which you are deriving from each and every unit, each successive unit, that keeps on falling. और इसी को हम law of diminishing marginal utility कहते हैं. आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1, यानी कि n का मतलब nth यूनिट. सो TU ऑफ n यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, और TU ऑफ n यानी कि यूटिलिटी फ्रॉम n माइनस 1. यानी कि अगर ये पीछे आ जाइए, n माइनस 1 यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि आप ये सेकेंड यूनिट का MU निकालना चाहते हैं तो TU ऑफ सेकेंड यूनिट दैट इज 45 माइनस TU ऑफ n माइनस 1, n यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि फर्स्ट यूनिट दैट इज 25. 45 में से 25 लेस कर दीजिए. एज पर दिस फॉर्मूला आपकी यूनिट्स जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 20 आ जाएगी. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आप चाहें तो मार्जिनल यूटिलिटी, हालांकि फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा. डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज. TU, डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा Q. So that is change in total utility divided by change in number of units consumed. So sometimes it happens कि अगर आपको सेकेंड यूनिट से 20th यूनिट दे रखी है तो वो 18 यहाँ पर आएगा जो क्वांटिटी में चेंज आया है. इस चीज का ध्यान रखिएगा. क्वेश्चंस आने दीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा यहाँ पर क्या कुछ है क्या नहीं है. सो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप समझ गए हैं. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं. इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ कार्ड सेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल कीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे. आई होप सो कि कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. अगर कहीं पर भी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. और अगर इसी तरीके की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल. और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर and goodbye all of you, and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you so much.